खला की सैर खलाई सियाहत से मुराद ऐसी सियाहत है जिसमें आम लोग जो खलाबाज नहीं होते तफरी या तजुर्बे के लिए खला में जाते हैं। ये जदीद दौर का एक नया रुझान है जिसमें इंसान खला में जाकर ज़मीन को ऊपर से देख सकता है और बेवज़नी का तजुर्बा कर सकता है। Do you think space tourism could become mass? क्या आपको लगता है कि खलाई सियाहत आम हो सकती है? Can you imagine that in a few years we could be using spaceships as we use passenger airplanes? क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि चंद सालों में हम खलाई जहाज ऐसे इस्तेमाल कर रहे होंगे जैसे मुसाफिर जहाज इस्तेमाल करते हैं? A number of companies are getting ready to send people out in the space, and कई कंपनियां लोगों को खला में भेजने की तैयारी कर रही हैं. Commercial operators are now competing to operate scheduled services to the outer limits of the Earth's atmosphere. Commercial operators अब मुकाबला कर रहे हैं कि ज़मीन के फ़ज़ाई किनारों तक बाकायदा सर्विसेज चलाएं. This is termed as space tourism. इसे space tourism यानी खलाई सियाहत कहा जाता है. Space tourism is used to describe space travel for recreational or leisure purposes. खलाई सियाहत से मुराद तफरीह या आराम की गर्ज से खला में सफ़र करना है. What was once only a dream is now becoming a reality. जो कभी सिर्फ ख्वाब था वो अब हकीकत बन रहा है. Professor Richard Crowther, technical advisor to the UK Space Agency, predicted that in the future space trips would become a lot more regular and a lot cheaper. UK Space Agency के technical advisor Professor Richard Crowther ने पेशगोई की कि मुस्तकबिल में खलाई सफ़र ज़्यादा बाकायदा और बहुत सस्ता हो जाएगा. It will be very expensive at first, but the technology that will then develop will open up space to everybody, he said. उन्होंने कहा शुरू में ये बहुत महंगा होगा लेकिन जो टेक्नोलॉजी इसके बाद तरक्की करेगी वो खला को सबके लिए खोल देगी. In the early days of aviation, very few people went on aircraft, but now it's mass market. हवाई जहाज की इब्तदाई दिनों में बहुत कम लोग सफ़र करते थे, लेकिन अब ये अवामी सहूलत है. A mass market for taking people into space will be a long way away, but the costs should fall with new technology. लोगों को खला में ले जाने के लिए अवामी सहूलत अभी काफ़ी दूर है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ लागत ज़रूर कम होगी. Futurologists are predicting that in the near future, man will be able to make hotels and homes in the space. मुस्तकबिल के माहिरीन पेशगोई कर रहे हैं कि करीब मुस्तकबिल में इंसान खला में होटल और घर बनाने के काबिल होगा. However, they had predicted that hotels will be built on Moon after the first man landed on Moon in 1969, but that did not happen. ताहम इन्होंने पेशगोई थी कि 1969 में इंसान के चांद पर उतरने के बाद वहां होटल बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Futurologists also considered the possibility that in the 21st century, families might go for a holiday on the moon. मुस्तकबिल के माहिरीन ने ये इम्कान भी सोचा था कि 21वीं सदी में ख़ानदान शायद चांद पर छुट्टियां मनाने जाएंगे. Neither of these predictions have come true yet. इनमें से कोई भी पेशगोई अभी तक सच नहीं हुई, but the rapid development of technology may mean these predictions are a possibility in the years to come. लेकिन टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार तरक्की इस बात की निशानदेही करती है कि ये पेशगोइयां आने वाले सालों में मुमकिन हो सकती हैं. Space Adventures is currently the only company to have succeeded in sending paying passengers into space. इस वक्त Space Adventures वाहिद कंपनी है जिसने कामयाबी के साथ पैसे देने वाले मुसाफिरों को खला में भेजा है. They have built special aircrafts and designed a special runway for traveling between the space and Earth. उन्होंने खास तैयारे बनाए हैं और ज़मीन और खला के दरमियान सफ़र के लिए एक खास रनवे भी तैयार किया है. Special space suits for people who can afford and travel to space have also been designed. ऐसे लोगों के लिए खास खला के सूट भी डिज़ाइन किए गए हैं जो इस्तिताअत रखते हैं और खला में सफ़र कर सकते हैं. Several successful explorations into space, several companies are now considering the possibility of enabling tourists to visit space.
खिला में कई कामयाब मिशनों के बाद अब कई कंपनियां इस इम्कान पर गौर कर रही हैं कि सियाहों को खला का दौरा कराया जाए. In order to make it more affordable, suborbital space travel is being considered by many companies, including Virgin Galactic. इसे ज़्यादा सस्ता बनाने के लिए कई कंपनियां, जिनमें Virgin Galactic भी शामिल है, suborbital खला के सफ़र पर गौर कर रही हैं. Passengers would be transported to a height of between 100 and 160 kilometers above Earth, experience 3 to 6 minutes of weightlessness, and view the stars before being taken back down to Earth. मुसाफिरों को ज़मीन से 7 से 160 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा, जहां वो 3-6 मिनट तक बेवज़नी का तजुर्बा करेंगे और सितारे देखेंगे. इसके बाद इन्हें वापस ज़मीन पर ले आया जाएगा. Whilst it could be an enriching experience, there are some disadvantages to space tourism. That अगरचे ये एक शानदार तजुर्बा हो सकता है, लेकिन खला की सियाहत के कुछ नुकसानात भी हैं. Many critics have commented that a huge growth in the spaceflight industry could drastically speed up the process of global warming. बहुत से नाक़दीन ने कहा है कि खला की परवाज़ों की सनअत में बड़ी तरक्की आलमी हिदत के अमल को तेज कर सकती है. The ozone layer would be damaged further and the polar regions would suffer. ओज़ोन की तह मज़ीद ख़राब हो जाएगी और क़ुत्बी इलाके मुतासिर होंगे. In addition, space travel is only really a possibility for the super rich. मज़ीद ये कि खला का सफ़र दरअसल सिर्फ इंतहाई अमीर लोगों के लिए मुमकिन है. Although Virgin Galactic claims to be opening space to the rest of us, there are still millions of people worldwide who wouldn't be able to afford it. अगरचे Virgin Galactic ये दावा करता है कि वो बाकी सबके लिए खला खोल रहा है, लेकिन दुनिया भर में अब भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते. Difficult terms and phrases with Urdu meanings and definitions. 1. Space tourism. खलाई सियाहत आम लोगों का तफरीह या तजुर्बे के लिए खला में जाना. 2. Recreational purposes. तफरीही मकासद आराम, मज़ा या तफरीह के लिए किया जाने वाला अमल. 3. Weightlessness. बेवज़नी. वो हालत जब किसी जिस्म पर खशिश सकल का असर महसूस नहीं होता. 4. Mass market. अवामी मंडी. आम लोगों की सहूलत ऐसी चीज़ जो ज़्यादातर लोग ख़रीद या इस्तेमाल कर सकें. 5. Commercial operators. तिजारती इदारे, कारोबारी मुंतज़मीन, वो कंपनियां जो तिजारती बुनियाद पर कोई खिदमत फराहम करती हैं. इस scheduled services. बाकायदा सर्विसेज, वो सर्विसेज जो मुकर्रर वक्त पर चलाई जाती हैं. 7. Outer limits. बैरूनी हदें, किनारे, किसी चीज़ का आखिरी किनारा या दायरा. East. Earth's atmosphere. ज़मीन का माहौल, फ़ज़ा, गैसों की तह जो ज़मीन को घेरे हुए है. 9. Technical advisor. फ़नी मशीर, वो शख्स जो किसी मखसूस टेक्निकल मामले में रहनुमाई फराहम करे. 10. Predicted. पेश गोई की, किसी वाक़े के होने का पहले से अंदाज़ा लगाना. 11. Aviation. हवाबाजी, हवाई जहाज़ों के ज़रिए सफ़र या परवाज़ का इल्म. 12. Futurologists. मुस्तकबिल के माहिरीन, वो लोग जो मुस्तकबिल के बारे में साइंसी अंदाजे लगाते हैं. 3. Regular trips. बाकायदा सफ़र, वो सफ़र जो मखसूस वक्फे से होते रहते हैं. Rapid development. तेज़ रफ्तार तरक्की, किसी चीज़ में जल्दी और नुमायां बेहतरी या तब्दीली. टेक्नोलॉजी, साइंसी इल्म को अमली शक्ल में इस्तेमाल करना. 6. Possibility. इम्कान, किसी चीज़ के होने का इम्कान या मौका. Predictions. पेश गोइयाँ, मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे या बयानात. Detectives. Reality. हकीकत जो सच या वजूद रखता हो. Space Agency. खलाई इदारा, वो सरकारी तंजीम जो खला से मुताल्लिक तहकीक करती है. Spacecraft. Spaceship. खलाई जहाज, खला में सफ़र के लिए तैयार किया गया खुसूसी जहाज. Suborbital travel. ज़ीली मदारी सफ़र, खला का वो सफ़र जो मदार के इर्द गिर्द नहीं घूमता बल्कि आर्जी तौर पर खला में जाता है. Virgin Galactic कंपनी का नाम एक निजी कंपनी जो खलाई सियाहत के मंसूबे बना रही है. Digitally passengers. मुसाफिर, वो लोग जो किसी सवारी या जहाज़ में सफ़र करते हैं.
height of 100 to 160 kilometers, 60 से 160 किलोमीटर की बुलंदी, वो फासला जो ज़मीन की सतह से खिला के करीब होता है. Medifeif, enriching experience, नफ़ा बख्श इल्म अफ़ज़ा तजुर्बा, ऐसा तजुर्बा जो इंसान के इल्म या ज़िंदगी में इजाफा करे. Medsis, disadvantages, नुकसानात वो बातें जो किसी अमल को मनफी या नुकसानदा बनाएं. Critics, नाक़दीन वो लोग जो किसी चीज़ की खामियों या खूबियों पर तबसरा करते हैं. Deviate, huge growth, बहुत ज़्यादा तरक्की किसी सनत या शोबे में तेज़ी से इजाफा. Nice, स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्री, खलाई परवाज़ की सनत, वो सनत जो खला में सफ़र या परवाज़ से मुताल्लिक़ काम करती है. ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत ज़मीन के दर्जा हरारत में मजमूई इजाफा. थियत, ओजोन लेयर, ओजोन की तह फ़ज़ा में गैसों की एक तह जो सूरज की नुकसानदा शाओं को रोकती है. 3D, पोलर रीजन्स, कुतबी इलाके, ज़मीन के शमाली और जनूबी इंतहाई सर्द इलाके. सुपर रिच, इंतहाई अमीर वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो. अफोर्डेबल, काबिल बर्दाश्त सस्ता जो किसी की माली इस्तिताअत में हो. ओपनिंग स्पेस टू द रेस्ट ऑफ अस, सबके लिए खला खोलना, आम लोगों को खला तक रसाई देना. 36 एक्सप्लोरेशंस, खोज, तहकीकाती महमात, किसी नए मकाम या चीज़ की तलाश या तहकीक. Enable tourists, सियाहों को काबिल बनाना, सियाहों को किसी खास काम के लिए मौका या सहूलत देना. Considered, गौर करना, किसी चीज़ के बारे में सोच समझकर फैसला लेना. Affordable travel, सस्ता सफ़र, ऐसा सफ़र जो ज़्यादातर लोग बर्दाश्त कर सकें. 50 runway, हवाई पट्टी, वो रास्ता जिस पर तैयारा उड़ान भरता या उतरता है. डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, किसी चीज़ को मंसूबाबंदी के साथ तैयार करना. 40D स्पेस, खलाई लिबास, खला में जिस्म को महफूज रखने के लिए पहना जाने वाला लिबास. सक्सीडेड, कामयाब हुआ, किसी मकसद को हासिल करना या कामयाबी पाना. 44 पेइंग पैसेंजर्स, किराया देने वाले मुसाफिर, वो मुसाफिर जो अपनी जगह के लिए पैसा अदा करते हैं. So if atmospheric limits, फ़ज़ाई हदें, वो मकाम जहाँ ज़मीन की फ़ज़ा ख़त्म होकर खला शुरू होता है. Drastically speed up, तेज़ी से बढ़ाना, किसी अमल को गैर मामूली रफ्तार से आगे बढ़ाना. Damaged further, मज़ीद नुकसान पहुँचना, पहले से मुतासिर चीज़ का मज़ीद ख़राब हो जाना. 40 polar regions would suffer, कुतबी इलाके मुतासिर होंगे, ज़मीन के सर्द इलाकों पर मनफी असरात पड़ेंगे. Rest of us, बाकी लोग, वो तमाम लोग जो मखसूस गिरोह मसलन अमीर तबका में शामिल नहीं. Years to come, आने वाले साल, मुस्तकबिल के ज़माने या अगले कई साल. Vocabulary. 1. Match the words with their correct meanings. Spaceship, a vehicle that travels in space. A spaceship, एक गाड़ी जो खला में सफ़र करती है. An entrepreneur, a person who starts their own business. Entrepreneur, वो शख्स जो अपना कारोबार शुरू करता है. A runway, a special path on which aircraft takes off and lands. Runway, एक खास रास्ता जहां से हवाई जहाज उड़ान भरते और उतरते हैं. Mass market, produced or designed for as many people as possible. Mass market, ऐसी चीज जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए तैयार की जाए. Aviation, the activity industry of designing, producing or flying an aircraft. Aviation, हवाई जहाज बनाने, डिज़ाइन करने या उड़ाने की सनात. An incentive, something that encourages you to do something. Incento, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कुछ करने की तरगीब दे. Impact, the effect that something has impact, किसी चीज़ का असर या नतीजा. 2. True-false statements. A. It is currently possible for tourists to fly to space on a regular basis. अभी सियाहों के लिए खला में बाकायदा परवाज़ करना मुमकिन है. False. F. अभी ये बाकायदा तौर पर मुमकिन नहीं है. B. Space tourism will soon become a mass market. खलाई सियाहत जल्द ही आम लोगों के लिए होगी. ये फिलहाल सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, आम मार्केट के लिए वक्त लगेगा. C. Governments have become less interested in developing space flight technology. हुकूमतें खला की टेक्नोलॉजी में कम दिलचस्पी ले रही हैं. False. हुकूमतें अब भी दिलचस्पी रखती हैं. D.
Scientific advances have taken place because of space tourism. खलाई सियाहत की वजह से साइंसी तरक्की हुई है. साइंसी तरक्की ज्यादातर तहकीक और मशन से हुई है, सियाहत से नहीं. E. Space tourism will have a serious impact on the environment. खलाई सियाहत माहौल पर संगीन असर डालेगी. True T. ये ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग को मुतासिर करेगी. F. The cost of a commercial space flight is much cheaper than a space company's flight because of the spaceship design. Commercial खला की परवाज की कीमत खलाई कंपनी की परवाज से सस्ती है क्योंकि स्पेसशिप का डिजाइन मुख्तलिफ है. False F. Commercial परवाजें बहुत महंगी हैं, डिजाइन की वजह से सस्ती नहीं. G. The price of a space flight ticket will become cheaper in the future. खला की परवाज का टिकट मुस्तकबल में सस्ता हो जाएगा. True T. Technology के तरक्की करने से कीमत कम होगी. Comprehension questions. Question A. What is meant by a futurologist? Futurologist से क्या मुराद है? Answer. A futurologist is a person who studies and predicts what may happen in the future. Futurologist वो शख्स होता है जो मुस्तकबिल के बारे में तहकीक करता है और पेशगोइयां करता है. Question. Do you think space tourism is possible? Support your answer with reasons from the passage. क्या आप समझते हैं कि खलाई सियाहत मुमकिन है? अपने जवाब को इबारत से दलाइल देकर साबित करें. Answer. Yes, space tourism is possible because companies like Virgin Galactic and Space Adventures are already preparing for it. They have designed special aircraft, runways, and spacesuits. Although it is very expensive now, in the future it may become cheaper. जी हाँ, खलाई सियाहत मुमकिन है क्योंकि वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेस एडवेंचर्स जैसी कंपनियां उसकी तैयारी कर रही हैं. उन्होंने खास हवाई जहाज, रनवे और खलाई लिबास तैयार किए हैं. अगरचे अभी ये बहुत महंगा है, लेकिन मुस्तकबल में ये सस्ता हो सकता है. Question C. Who predicted that space travels will be more frequent? किसने पेशगोई की कि खलाई सफर ज्यादा कसरत से होंगे? Answer. Professor Richard Crowther, technical advisor to the UK Space Agency, predicted this. Professor Richard Crowther, जो UK Space Agency के technical advisor हैं, ने ये पेशगोई की. Question D. At what height will the passengers be transported above the Earth? मुसाफिरों को जमीन से किस बुलंदी पर ले जाया जाएगा? Answer. Passengers will be transported between 100 kilometers and 160 kilometers above the Earth. मुसाफिरों को जमीन से 1 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक की बुलंदी पर ले जाया जाएगा. Question E. The article talks about some of the disadvantages of space tourism. Can you think of more? मज़मून में खलाई सियाहत के कुछ नुकसानात बयान किए गए हैं. क्या आप मज़ीद सोच सकते हैं? Answer. Yes. More disadvantages could include space junk increasing in orbit, risk of accidents, huge costs for governments, and inequality because only the rich can afford it. जी हाँ, मज़ीद नुकसानात ये हो सकते हैं. खला में कचरा बढ़ना, हादसात का खतरा, हुकूमतों पर भारी अखराजात और अदम मुसावात क्योंकि सिर्फ अमीर ही उसकी इस्तिताअत रखते हैं.